आगे डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, जी जी नमस्कार। बस ठीक है सर बस ठीक है भाई। और जी ठीक है। आओ जी, आगे आओ। हाँ मैं आधे घंटे में पूछूंगा। थोड़ा यहाँ पर एक ट्रेडिशनल डे का फंक्शन हो रहा है तो मैं पूछता हूँ। आपको कैसे आपको कैसे सर डॉक्टर साहब इधर देखना डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब भाई पीछे तो हाथ में लगा रूम कर लेते मैं वो नहीं। Please take your respective seat. Members and dear students, good morning to one and all. On behalf of Department of Law, Chaudhry Ranbir Singh University, I, Dr. Parul, Faculty, Department of Law, I, Preeti Sehrawat, Faculty, Department of Law, welcome you all to celebrate this momentous occasion, that is India's 75th Constitution Day. 75 years ago, our Constituent Assembly adopted the Constitution of India, a remarkable document that laid the foundation for our democratic republic. Our Constitution is not just a legal framework, it is a living testament to the values of justice, equality, liberty, and fraternity. As you are aware, on 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect on 26 January 1950, thereby making the beginning of a new era in the history of India. This day holds immense significance as it marks the enactment of world's longest written constitution, and its subsequent journey represents the triumph of democracy. Since its inception, the Constitution has been successfully guiding the social and economic development of India. To mark the significance of completion of 75 years of adoption of Constitution,
it has been decided to celebrate this event as हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। जय हिंद, जय भारत। It is our honor and privilege to welcome our worthy Vice Chancellor Sir Shri Ranpal Singh, our worthy Registrar Ma'am Dr. Loveleen Mohan, our distinguished guests for the event, Dr. Krishna Lal Midda, Deputy Speaker, Haryana Legislative Assembly, Shri Devendra Chatrabhuj Atri, MLA Uchana, DC Jeend, Shri Mohammad Imran Raza, IAS, CTM Jeend, Shri Ashish Deswal, HCS, our keynote speaker for the event, Dr. Anand Deswal Sir, former Director, CR Institute of Law, Rohtak. I welcome you all. I would also like to welcome our respected chairperson, Dr. Sunil Fogart Sir, and our department in charge, Dr. Rohit Rathi Sir. I welcome you all to this celebration event. Now, I would like to request our Honorable Vice Chancellor Sir to please come up on the stage and welcome our honorable guests and dignitaries. Please, sir. सबसे पहले तो मैं आप सभी को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा उपस्थित हैं। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप हम सब के साथ जो है वो सेलिब्रेट करने आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी, MLA उचाना, आप मिड्ढा साहब के साथ और डिस्ट्रिक्ट जींद के विधायक होने के नाते आप हमारे जो है यहाँ पर आए सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए आपका भी मैं स्वागत करता हूं। डिप्टी कमिश्नर साहब इमरान मोहम्मद रजा IAS, जो समय समय पर हमें जो है हर मामले में एडमिनिस्ट्रेशन के या कोई भी समस्या हमारी आती है तो उसमें हमारी जो है बहुत सहायता करते हैं। सर, मैं आपका यहाँ पर आने के लिए स्वागत करता हूँ और साथ में धन्यवाद। CTM साहब श्री आशीष देसवाल HCS, तहसीलदार साहब डॉक्टर मनोज अहलावत जी और आज के स्पीकर डॉक्टर देसवाल जी जो MD यूनिवर्सिटी से आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं क्योंकि जो संविधान पर बोलेंगे, जिनका मुख्य जो एजेंडा होगा वो संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्या जो है इसके पीछे कारण हैं, ये सभी आप जो है उस पर बोलेंगे। मैं आपका जो है स्वागत करता हूं। और इसके अलावा जितने भी सभी ऑफिशियल्स यहाँ पर जो है विधायक जी के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया है, मैं सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन 26 नवंबर हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने एडॉप्ट किया था। तो ये डेट एडॉप्शन की है कि उसको ग्रहण किया था कि हम आज एडॉप्ट करते हैं एंड इनेक्ट करके एडॉप्ट किया था, इसलिए 26 नवंबर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत पहले से ही जब भारत की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो हम 26 जनवरी को जो है सेलिब्रेट करते थे इंडिपेंडेंस के रूप में इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता का दिन हम उसको सेलिब्रेट करते थे। तो इसलिए हमने जो है उस टाइम जो लीडर्स थे सभी ने फैसला किया कि हम इसको आगे 26 जनवरी को जो है
संविधान सभा यानी कि उसको जो है संविधान का दिन या संविधान को लागू करने का दिन जो है 26 जनवरी होगा। एडॉप्शन, ये एडॉप्शन डे है और वो लागू करने का दिन है। ये संविधान में जितना भी लिखा गया है, आज जो कुछ हम हैं, किसी के पास पावर्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब इसी बुक की देन है। तो ये हमारे देश की एक पवित्र बुक है जिसके द्वारा हमारा प्रशासन चलता है। ये कोई छोटी सी बात कह देना कि ये संविधान दिवस क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसी के द्वारा आपको अधिकार हैं, इसी के द्वारा आपके देश के प्रति कर्तव्य हैं। तो हम उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर साहब, एमएलए साहब और डीसी साहब जो आए हैं, वो सब ये बताने आए हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट डे है, हमें इसको जो है सब खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं पुनः आप सभी का जो है स्वागत करता हूँ और सब बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Please play the clip. We have a documentary on Indian Constitution. आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि आज संविधान दिवस है। ये दिवस हमें हमारे लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और संप्रभु गणराज्य होने की याद दिलाता है। भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, हमारे लिए न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे अमूल्य अधिकारों का उपहार है। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ये संविधान राष्ट्र को समर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति को जीवित रखने और हर भारतीय के मन में भारतीयता का प्रकाश फैलाने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उनके विजन ने इस देश को प्रगति पथ पर अग्रसर होने का मार्ग दिखाया। संविधान दिवस के इस अवसर पर हरियाणा वासी देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प दोहराते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने संविधान के आदर्शों को आत्मसात करें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान दें। जय हिंद। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टूडेंट्स आप गेट में ना खड़े हो। आप जो भी गेट में खड़े हैं वो सेटल डाउन हो जाइए। Now it is time for the main event of this evening. I would like to request our keynote speaker, Dr. Anand Deswal, to please come up on the stage and deliver his lecture on the topic
fundamental rights and directive principles in Indian Constitution, two wheels of a chariot of socio-economic justice. Please give him a huge round of applause. आज 75वें अलौकिक संविधान समारोह के मौके पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण लाल मीणा, डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा, एंड ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रणपाल सिंह जी, मैडम रजिस्ट्रार एंड द चेयरमैन डॉक्टर सुनील फोगाट एंड द अदर फैकल्टी मेंबर्स who were engaged to organize this wonderful event at national level, I will say the international level. ऐसा सौम्य कार्यक्रम मैंने संविधान दिवस पर पहले स्वयं भी उसका साक्षी नहीं बना हूँ मैं. तो dear students and faculty members, first of all we should know why we are celebrating this day, that is 26th November as Constitution Day. As we all have gone through the wonderful documentary depicting by the Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, and the brief discussion on the Constitution by Honorable Vice Chancellor, that this day is the important as it is the day of adoption and completion of the biggest constitution of the world, that is Indian Constitution. Before this, from the inception or starting on the date that is 26 November 1949, it was celebrating as the National Law Day by the departments of universities, law colleges and institutions separately in their premises in their own personal way. As you see the documentary, in the year of 2015, Union Cabinet observed that 26th November it is to be celebrated as Constitution Day, keeping in the mind 125th birthday anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar ji, who is the architect, who is considered the father and architect of the wonderful Constitution. And consequently, upon 19th November 2015, the Ministry of Social Justice and Empowerment notified the document of Government of India as 26th November will be celebrated yearly as the Constitution Day. Then it was the second largest constitution in the world after Yugoslavia, but it was the modern constitution today as well. It was conceived and drafted in the mid-20th century when the concept of social welfare state is the rule of the day, gave an advantage to its makers. They could take cognizance of the various constitutional processes operating in different countries of the world and thus draw rich fund of human experience, heritage, wisdom, tradition areas in the governmental process in order to fashion a system suited to the social, political, economic system in the India. संविधान निर्माताओं को यह भी आभास था उस समय कि बिना राजनीतिक, बिना इकोनॉमिक, आर्थिक स्वतंत्रता के, राजनीतिक स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं है. Accordingly, they incorporated a few provisions to ameliorate the socio-economic conditions of masses of the India. And the great, unique, wonderful preamble of the Indian Constitution records the solemn resolve of their dreams and aspirations of the Constitution makers. Or being the law students, even students, whether they are of legal background or not, well acknowledged through this wonderful preamble. As it says, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political.
liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि जो डाउन ट्रोडन पीपल है उनमें भाईचारे की सबके साथ मिलकर उनका विकास हो, वो भी भारतीय एक समान विचारधारा में शामिल हो और सबको ये एहसास हो कि हम भी भारत के वासी हैं और सबको ये मजबूती देने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान इतने बड़े संविधान में रखा गया। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of an individual, unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. जैसे हम विधि की भाषा को समझते हैं ना, अडॉप्ट एंड गिव टू, आज इस संविधान को हम ग्रहण करते हैं, इनेक्ट इसको विनियमित करते हैं, एंड गिव और इसको धारण करते हैं और इसको आप खुद को इसका हिस्सा मानते हैं थ्रू द आवर फोरफादर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो एक मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम्स के माध्यम से उनको बताते हैं कि ignorantia juris non excusat, it means ignorance of law is not excuse। सरल भाषा में मैं इसे कहूं तो विधि के बारे में अज्ञानता कोई बहाना नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी दूसरे डिसिप्लिन का स्टूडेंट है, उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए। हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इफ एनी पर्सन caught in a train without ticket, he can't plead that I was not aware of the regarding the purchasing the railway ticket, so I may be excused. And I think कि one person that is conductor like the roadways will access the coach and disperse the railway ticket. आपको पता होना चाहिए कि रेलवे की टिकट कहाँ मिलती है। Like in another example, Mr. Sachin is caught riding two wheelers, scooty, bike, and he can't excuse that I was not aware of that। मुझे तो पता ही नहीं था कि ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, मुझे तो पता ही नहीं। You must know the law to your own country. Ignorance of law about the foreign you may be excused, but it is your legal duty whether you are the students of law or not। तो इसलिए कानून की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, चाहे हम विधि के छात्र हैं अथवा नहीं हैं, अथवा किसी भी डिसिप्लिन से, अथवा हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग टू मी। अच्छे से समझ रहे हैं? ओके, थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कानून और संविधान की बात करते हैं, जो अपने राष्ट्र का सर्वोच्च संविधान है। संविधान सबसे बड़ा विधान, सबसे सुंदर विधान। किसी भी देश की आजादी की सबसे पहली पहचान होती है कि उसका अपना कानून होता है, उसका अपना संविधान होता है। जिस भी देश का अपना संविधान नहीं है, अर्थात वो किसी दूसरे देश के अधीन है, किसी दूसरे राष्ट्र की नीति के अधीन है, दूसरे राष्ट्र के संविधान के अधीन उसकी रूलिंग है। तो जब अब बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑर्डिनरी लॉ, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, as it establishes the basic organs of the government, legislature, executive and judiciary, and provides their composition, their powers, structures, limitations under which they have to work. UPSC and other services, steel framework of the country, establishes by the country। कोई भी गवर्नमेंट का अंग, सभी हम ना स्कूली एजुकेशन से पढ़ने लग जाते कि भारत की सरकार के 2-3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सभी मिलकर सामूहिक रूप से सरकार कहलाते हैं। और जब साधारण कानून के बारे में जानना हर व्यक्ति की विधिक दायित्व है, विधिक कर्तव्य है, तो संविधान के बारे में जानना तो बहुत ही मौलिक और आवश्यक है। अगर आपको विधि का ज्ञान है तो अस्तित्व है। लॉ के विद्यार्थी बैठे होंगे, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया is the leading case। Chief Justice Matthew says that कि excellence comes after existence, excellence comes after existence, और बड़े बूढ़े हमारे कवि से कहते कि जान है तो जहान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फिर मैं वही पॉइंट पर आता हूं
कि राजनीतिक स्वाधीनता के कोई मायने नहीं है अगर आर्थिक स्वाधीनता नहीं है। तो इस पर्पज से ये जो प्रियम्बलरी विजन है हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स, different facets of part 3 and part 4 of the constitution that both aim to establish the egalitarian social order and to give a sustenance to the rule of law, विधि का शासन। और ये 21वीं सदी है, आपको शिक्षा के साथ विधिक शिक्षा से भी अलंकृत होने की आवश्यकता है। 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्कर कठिन है ये। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्कर कठिन है ये। पग पग पर भेद भाषा रक्त रंजित पांव है। जन्म से किसी के सर वंश की छांव है और झूठ के रथ पर सवार डाकुओं का गांव है। किसी को रूप, किसी के पास छल कपट तो किसी को रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। आज विधि का शासन है, विधि के समक्ष सब समान है, यह कहता आपका संविधान है। वज्राह मृदंग है और यह कहता अंग अंग है। उठा ले अब तू ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से। लगा ले तू विजय तिलक विधि के ज्ञान से। अमृत काल के कपाट पे लिख दे तू ये गुलाल से कि हक छीनता आया मुझे, अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, जहां न रूप काम आता है न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है न बाप का नाम काम आता है। आपका ज्ञान, आपका कानूनी ज्ञान और विधि ही है जो आपको आपका हक दिलाता है। उम्मीद करता हूं बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मिडनाइट बर्न ऑयल करके इतना बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में आज बनाया है। जैसा मैंने बताया कि तब बना वो यूगोस्लाविया के बाद सेकंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। Then 395 articles divided into 22 parts with 8 schedules and a unique wonderful preamble that is depicted in words by myself. 1,45,000 words with cost of 6.4 crore की लागत से वो इतना विस्तृत संविधान भारतीय संविधान निर्माता बना सके। और वर्तमान की बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुडे कंसिस्ट ऑफ 448 आर्टिकल एंड टोटल वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 1,46,000। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिटिंग इट फर्स्ट मीटिंग ऑन 9th December 1946, कड़ाके की सर्दी। टुडे सेंट्रल हॉल जो पार्लियामेंट हाउस का है उसमें पहली मीटिंग हुई। 384 मेंबर्स में से 207 मेंबरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ कारणवश ठंड और हल्की ओस की बूंदों के बावजूद जो है वो संविधान सभा सच्चिदानंद सिन्हा जो है औपचारिक जो प्रधान बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए, उनका स्वास्थ्य कुछ शिथिल था। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप इसको जा सकते हैं। आपके इंटरनेट का AI का जमाना है। तो मैं अपना वक्तव्य जो है पूर्ण करना चाहूँगा और आप सभी का आभार हृदय से व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतना अद्भुत अवसर आपके समक्ष उपस्थित होने का दिया। तो मैं हृदय से आभारी आप सभी का, आपने मुझे इतने अच्छे से सुना। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for such informative session. Now, I would like to request Shri Devendra Atri, sir, to please come on the stage and address our students. Please, sir. सबसे पहले तो आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर कृष्णलाल मिंडा जी, जिनका हमेशा मेरे सिर पर हाथ रहा है, वाइस चांसलर सर, लवलीन मैडम जी, हमारे डीसी साहब, बहुत ईमानदार ऑफिसर्स जो यहाँ सेवाएं कर रहे हैं, हमारे डीसी साहब, CTM साहब, सब फैकल्टी, हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का सादर नमन करता हूँ।
मेरे जी युवा साथी, प्रतिभाशाली देश की प्रतिभावान प्रतिभाएं, विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं सर्वप्रथम आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज हम संविधान दिवस के पावन पर्व पर मनाने हेतु सब एकत्रित हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप आज युवा साथियों के बीच में मुझे संविधान दिवस पर बोलने का मौका मिल रहा है और उस महान व्यक्तित्व को, बड़े व्यक्तित्व को जिन्होंने संविधान की रचना की है, मैं श्री भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान में आमतौर पर 500 पन्ने हैं। संविधान के 1,17,369 मूल शब्द लगभग 390 पन्नों में फैले हुए हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था व 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया था। इसलिए 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार, भाषण का अधिकार और राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, राष्ट्रीय गान का सम्मान आदि हमारे कर्तव्य व हमारे अधिकार हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए ये कहूंगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया हमें और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कैंपस में फर्स्ट टाइम आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजी साहब, मैडम, आपने बहुत बढ़िया कैंपस बनाया है। तो आप सबको पुनः नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, सब फैकल्टी मेंबर्स को थैंक यू बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। पुनः आप सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your kind words. Now I would like to request our chief guest, Dr. Krishnalal Midda, sir, to please come on the dais to say a few words to our students. Please, sir. सबसे पहले तो मैं आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और वहीं पर विधानसभा में मेरे साथी, मेरे छोटे भाई देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी, हमारे डीसी साहब श्री मोहम्मद इमरान रजा जी, यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय रणपाल जी, श्रीमती लवलीन मोहन जी रजिस्ट्रार मैडम, सीटीएम साहब मनोज जहलावत जी, तहसीलदार साहब सुदेश चोपड़ा जी, डॉक्टर दीनदयाल जी, काला गोतवली जी, धर्मपाल कटारिया जी, वह आए हुए सभी महानुभाव, कृषि प्रधान देश का भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, और मैं 26/11 को जो हमला हुआ था उन सब शहीदों को भी प्रणाम करता हूं। और आज का दिन, वो दिन अगर हम याद करें तो हमारे लिए बड़ा काला दिवस था, जिस दिन आतंकी हमला हुआ। उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन सबको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। वहीं पर सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, वैसे तो हर साल 26 नवंबर के दिन देश के संविधान के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस कुछ खास है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाए हुए आज 75 वर्ष हम लोगों को पूरे हो चुके हैं। इस बार हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान को चलाया गया। दोस्तों, आज बेहद गर्व का दिन है कि कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। आप सबको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 के दिन देश के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और ये वही दिन था कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ और हमारी सरकार के द्वारा संविधान दिवस को मनाने का मकसद देश के नागरिकों को, उनको कानून के प्रति जागरूक करना है, वहीं आदर की भावना को बढ़ाना भी है। दोस्तों, ये हमारा संविधान जो अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, भारत के 140 करोड़ की आबादी को एक परिवार की तरह जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, यह संविधान ही जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है,
संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमारा एक दिन दिलाते हैं, वही इसके लिए मौलिक कर्तव्य हमारी जिम्मेवारियां भी याद दिलाने का काम करता है। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर कोई देश चलाया नहीं जा सकता। इसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर बाबा भीम साहब अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभी सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की इस ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, फिर इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया। दोस्तों, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला किया, यह साल 2015 इसलिए खास है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। तब से लेकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस पर हर साल मनाया जाता है। संविधान के पहले का भारत कुछ और था, संविधान के बाद का भारत कुछ और है। बाबा साहब की चेतावनी आज भी हमसे एक उम्मीद रखती है कि हम मुल्क को आईने को भी बचाएं और उसे कायदे से जमीन पर उतारने का संकल्प लें। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नेक नीति के साथ यह संविधान दिवस मनाने का काम किया, उसकी शुरुआत की है, उसके लिए हम सबको मान सम्मान करना चाहिए। इस संविधान के दिवस पर हमें जीवन के हर अपने मौलिक कर्तव्यों और देश के कानून का पालन करना चाहिए। चाहे वो कोई भी किसी भी समय, चाहे राजा महाराजा का भी काल रहा, उस समय भी प्रत्येक राजा एक संविधान को बनाता था। अगर हम जिक्र करें रामायण काल की, तो जब भगवान राम वनवास के लिए गए चित्रकूट के पास, तब भी जब उन्हें सब मनाने के लिए उनके परिवार के लोग आए, और उसी प्रकार से माँ सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई, या माँ सीता को जब भगवान राम ने छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है, कभी कभी जन भावनाओं को भी दूर रखना पड़ता है और हमें नीति को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। ये हमारा संविधान हमें सिखाने का काम करता है। तो मैं आप सबको एक बार पुनः संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस दिवस को बड़े अच्छे ढंग से मनाने का काम किया, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन को ये पता लगे कि कानून का किस प्रकार पालना करनी चाहिए। हमारा संविधान ही हमें ये सिखाता है कि हमें किस प्रकार से अपने देश में रहना है, किस प्रकार से कानूनों को मानने का काम करना है। मुझसे पहले भी और जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बड़ी बारीकी से आपको बताने का काम किया। तो हम लोगों का फर्ज और दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार से अपने कानून की पालना करें और संविधान, जिसे हम ये कह सकते हैं एक परमात्मा के रूप में, हमें उसे पूजना चाहिए, क्योंकि हमारा देश उसी संविधान से चलता है। आप सब ने इतना प्यार और मोहब्बत दी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। Thank you so much, sir, for your kind words. Now it is time to reward the students who have obtained first and second division in various competitions held on the occasion of Constitution Day. And I would like to request all our dignitaries to please come on the stage and distribute prizes to these students. Second division Ichha in poster making competition. Palak Singh, first division.
Rajni, 2nd Division. In quiz competition, Ritika, 1st position. Dinesh, 2nd position. Now it is time to honor chief guest and honor him. Please give him a huge round of applause. Sapling to Shri Devendra Atri sir and honor him. And honor him. DC sir. Now I would like to तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स. थैंक यू. Honorable Deputy Speaker of Haryana Legislative Assembly, Dr. Krishan Lal Midda ji, Honorable Member of Legislative Assembly, Haryana, Shri Devendra Atri ji, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार मैडम और हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स और प्रशासन की ओर से अभी आए हुए सारे हमारे अधिकारीगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया है. मैं सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ यही कि मैं और आप, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम ये ओ करते हैं इस देश के संविधान के लिए. अगर ये संविधान इस प्रकार से नहीं बनाया गया होता तो इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ होता. ये संविधान ही है जिसने एक इलेक्शन की प्रोसेस को एक दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने की एक अपॉर्चुनिटी दी. उस अपॉर्चुनिटी के मद्देनजर हम सभी को 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वोट करने की एक चॉइस दी. उस वोटिंग प्रोसेस को इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनने की अनुमति दी. उन सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आपकी आवाज विधानसभा में, संसद में उठाने की अनुमति दी. उसी के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनने की अनुमति दी और उसी के तहत जो हम आज एक चर्चा कर रहे हैं, इस संविधान दिवस को मना रहे हैं, उसकी अनुमति दी. तो आपका, मेरा, हम सभी का जो एग्जिस्टेंस है वो इस संविधान के कारण है. तो मैं सिर्फ इस दिन के लिए नहीं, मेरा मानना है कि जब तक, कम से कम, वैसे तो पूरी जिंदगी, पूरे जीवन में हमें करना चाहिए, लेकिन जब तक आपके स्टूडेंट ईयर्स हैं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक तो आप डेली संविधान दिवस को मनाइए. क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में, ये जो देश आज इस जगह खड़ा है, यहाँ तक लाने में संविधान का भरपूर पूरा योगदान है. ये संविधान अगर इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया होता तो शायद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप और हम कहाँ होते. ये संविधान आज से 75 साल पहले बनाया गया, अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया. और मेरा मानना है कि जब तक हमारा जीवन काल, तो क्या, जब तक जब देश अपनी जगह पे खड़ा है, तब तक ये संविधान रेलेवेंट रहेगा. आज तक रेलेवेंट है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सभी अपने अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, वो आए, हमारे साथ समय व्यतीत किया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
Thank you so much, sir. I would like to thank all the esteemed dignitaries and authorities who have spared their valuable time and have come to encourage our students on the event of Constitution Day. Now, I would like to request all of you to please stand for national anthem. Please play the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे